کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسے انسان کا کیا حال ہوگا جس کے پاس اتنا مال اور دولت ہو کہ گننا ناممکن ہو جائے، جس کے باغات کے پھل اور مویشیوں کا دودھ پورے شہر کے لیے کافی ہو، اور جس کی خوبصورتی اور جوانی دیکھ کر لوگ دنگ رہ جائیں؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خوبصورت جوان نہیں دیکھا، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ اچانک ایک ہی پل میں سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن جائے؟ جی ہاں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جو اپنے دور کے سب سے بڑے بزنس مین تھے، جن کی زندگی عروج اور آزمائش کا وہ سفر ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، ہماری کہانی شروع ہوتی ہے قدیم شام کے علاقے سے۔ یہاں کی ہواؤں میں ایک عجیب سی مہک تھی اور زمین اتنی زرخیز کہ سونا اگلتی تھی۔ اسی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ایوب رکھا گیا۔ ایوب علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، ان کی رگوں میں انبیاء کا خون دوڑ رہا تھا۔ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے اور والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ذرا سوچیں، جس کے شجرہ نسب میں اتنے بڑے نام ہوں، اس کی شخصیت کیسی ہوگی؟ قدرت ان پر اس قدر مہربان تھی کہ انہیں وہ سب کچھ دے دیا جو ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے میں اس قدر حسین تھے کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی، بدن اتنا توانا کہ جوانی کی پوری چمک چہرے پر آیا تھی۔ لیکن سب سے بڑی دولت ان کا دل تھا، جو ہر وقت اپنے رب کی یاد میں دھڑکتا تھا۔ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے بلین ڈالر کے مالک بزنس مین میں سے ایک تھے۔ دوستو، اب ذرا تصور کریں اس جگہ کا جہاں حضرت ایوب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ یہاں ان کی ایک ایسی سلطنت تھی جس کی مثال آج کے دور میں ملنا مشکل ہے۔ اب حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ میلوں تک پھیلے ہوئے سبز باغات جہاں درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، لاکھوں اونٹ ریگستانوں میں قطار در قطار چل رہے ہیں، ہزاروں گائے بھینس اور بکریاں جن کے چرنے سے زمین ڈھک جاتی تھی۔ ان کے پاس ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مکانات تھے، اور اتنی زمین تھی کہ جہاں تک نظر جاتی انہی کی ملکیت نظر آتی تھی۔ دوستو، عام طور پر جب انسان کے پاس اتنی دولت آتی ہے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو کھلی اجازت دے رکھی تھی، جسے جتنا دودھ چاہیے لے جاؤ، جسے جتنے پھل درکار ہیں توڑ لو۔ گاؤں کی گلیوں میں اب کوئی محتاج نظر نہیں آتا تھا، کسی کے گھر میں چولہا ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ شام کے سائے ڈھلتے تو ایوب علیہ السلام اپنی تمام دولت کے باوجود سجدے میں گر جاتے اور گھنٹوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ ان کی سخاوت اور عبادت کا چرچا صرف زمین پر ہی نہیں تھا، بلکہ فرشتے آسمانوں پر بھی ان کی تعریفوں کے گیت گاتے تھے۔ زندگی کے اس پرسکون سفر میں اب ایک نئے باب کا اضافہ ہونا تھا۔ جب ایوب علیہ السلام نے شادی کا ارادہ کیا تو ان کی نظر انتخاب پڑی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بی بی رحمت پر، جس کا نام ہی رحمت ہو تو وہ خود کیسی ہوگی۔ بی بی رحمت صرف حسن و جمال میں ہی بے مثال نہیں تھی، بلکہ ان کا صبر اور نیکی رہتی دنیا تک عورتوں کے لیے ایک مثال بننے والی تھی۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو جیسے خوشیوں کے دروازے مزید کھل گئے۔ اللہ نے انہیں ایک دو نہیں بلکہ 48 بچوں سے نوازا، 24 لڑکے اور 24 لڑکیاں جو جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ذرا سوچیں اس گھر کے ماحول کا، جہاں 48 بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہوں گی، جہاں رزق کی ریل پیل ہوگی اور جہاں محبت کا راج ہوگا۔ اسی سال تک ایوب علیہ السلام نے اس خوشحالی اور عافیت کا دور دیکھا۔ ان کا گھرانہ زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن دوستو، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب ایوب علیہ السلام کی عبادت اور شکرگزاری کی خبریں آسمانوں کے طبق چیرتی ہوئی ابلیس یعنی شیطان تک پہنچی تو اس کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی انسان اتنی دولت پا کر بھی خدا کا اتنا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ایوب علیہ السلام صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال و دولت اور اولاد ہے۔ اگر یہ سب ان سے چھین لیا جائے تو دیکھنا وہ تیرا شکر ادا کرنا بھول جائے گا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن جب سورج معمول کے مطابق طلوع ہوا تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے ہولناک دن ہونے والا ہے۔ ابلیس نے ایک ایسی چیخ ماری جس سے زمین لرز اٹھی۔ وہ سرسبز وادی جہاں ابھی چند لمحے پہلے ہزاروں مویشیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اچانک ایک ہولناک سناٹے میں ڈوب گئی۔ ابلیس نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے وہ وار کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ فضا میں ایک ایسی ہولناک چیخ گونجی کہ پرندے درختوں سے گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہلہاتے باغات اور کروڑوں کی مالیت کے کھیت آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئے۔ لاکھوں اونٹ، گائے اور بھینس جو میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں تڑپ تڑپ کر راکھ بن گئیں۔ دھوئیں کے کالے بادلوں نے پورے افق کو ڈھانپ لیا تھا۔
इब्लीस जो इस बर्बादी का तमाशा देख रहा था, एक चरवाहे की शक्ल इख्तियार करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झूठा गम था और वो हांफते हुए बोला, ए अय्यूब, तुम्हारा खुदा जिसकी तुम दिन रात इबादत करते हो, देखो इसने किया। आसमान से आग बरसी और तुम्हारी तमाम मेहनत, तुम्हारे मवेशी, तुम्हारे बागात, सब कुछ जला कर खाक कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दिल दहला देने वाली खबर सुनी तो उनके चेहरे पर खौफ की बजाय एक अजीब सा सुकून था। उनकी आंखों में आंसू जरूर थे मगर ज़बान पर शको नहीं। वो आहिस्ता से सजदे में गिर गए और उनकी धीमी मगर पुरसोज आवाज़ गूंजी, ए परवरदिगार, ये सब तेरा ही दिया हुआ था, तूने वापस ले लिया, मैं हर हाल में तेरी मर्जी पर खुश हूँ। इब्लीस ये देखकर शर्मिंदा हो गया। इसका पहला वार नाकाम हो चुका था मगर इसे खबर नहीं थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इब्लीस ने देखा कि माल की जुदाई अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहीं तोड़ सकी तो इसने अब इस जगह वार किया। जहाँ किसी भी इंसान की सबसे कमज़ोर रग होती है, इसकी औलाद। जिस मकान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम 48 बच्चे, 24 बेटे और 24 बेटियां मौजूद थे, इब्लीस ने इसकी बुनियादें हिला दें। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो अजीम अलशान मकान मलबे का ढेर बन गया। वो कमरे जो थोड़ी देर पहले बच्चों के कहकहों से गूंज रहे थे, अब वहाँ से सिर्फ मौत जैसी खामोशी आ रही थी। इस बार इब्लीस बच्चों के उस्ताद की शक्ल में लंगड़ाता हुआ और सर पर मिट्टी डाले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया। इसने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू किया और बोला, हाय क़यामत हो गई। आपके वो प्यारे बच्चे, वो नूर नज़र इस मकान के नीचे दब कर मर गए। मैंने अपनी आंखों से उन्हें तड़पते देखा है। क्या यही सिला मिला आपको इतनी इबादत का? ये वो लम्हा था जहां एक आम इंसान का कलेजा फट जाता। 48 जनाजे एक साथ। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जो रहती दुनिया तक के लिए मशल रा बन गई। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और सजदा शुक्र किया और फरमाया, अब मेरा दिल तेरी इबादत के सिवा किसी और तरफ नहीं जाएगा। तूने मेरे दिल से दुनिया की आखिरी मोहब्बत भी निकाल दी ताकि मैं सिर्फ तेरा हो सकूं। अल्लाह ताला ने इसी वक्त फरिश्तों के सामने फ़ख्र से फरमाया, बेशक हमने अय्यूब को बड़ा साबिर पाया। इब्लीस की शिकस्त फाश हो चुकी थी, माल चला गया, औलाद चली गई, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का सर अब भी अपने रब के सामने झुका हुआ था। इब्लीस अब गुस्से से पागल हो रहा था। इसने अब अल्लाह से एक ऐसी इजाज़त मांगी जिसने तारीख का सबसे खौफनाक रुख इख्तियार कर लिया। वो इब्लीस जो माल और औलाद को ख़त्म कर चुका था, अब अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपने जिस्म पर हमला करने वाला था। एक ऐसी बीमारी जो इंसान की सोच से बाहर थी, जिससे गोश्त गलने वाला था और अपने भी मुंह मोड़ने वाले थे। अब इसने आखिरी और सबसे घिनौना वार किया। इसे अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इख्तियार मिल गया। एक दिन जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने सजदे में सर झुकाए हुए थे, इब्लीस ने उनके जिस्म पर एक जहरीली फूंक मारी। ये कोई मामूली हुआ नहीं थी, बल्कि जहन्नम की तपश जैसी एक लहर थी। देखते ही देखते वो खूबसूरत जिस्म जो कभी नौजवानी की चमक से दमकता था, बड़े बड़े आबलों और जख्मों से भर गया। तकलीफें इतनी शदीद थीं कि गोश्त गलने लगा और उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। जरा मंजर का तसव्वुर करें, वो हाथ जो कभी साइलों को सूना बांधते थे, अब हरकत करने से भी कासिर थे। मगर कुर्बान जाइए इस सब्र पर कि जब कोई कीड़ा उनके जिस्म से गिरता तो वो इसे उठाकर वापस जख्म पर रख देते और कहते, अपना रिस्क खा तो भी तो अल्लाह ही की मखलूक है। बीमारी ने जिस्म को छलनी कर दिया था मगर उनका दिल और जुबान अभी भी जिक्र इलाही से तरोताज़ा थे। दिन गुजरते गए और बीमारी की शिद्दत ने एक ऐसी बो पैदा कर दी कि बस्ती वाले परेशान हो गए। वो लोग जो कभी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर बैठना फ़ख्र समझते थे, अब उनके घर के पास से गुजरते हुए नाक पर रुमाल रख लेते थे। मस्जिद में आने वाले नमाजियों ने शिकायत की कि उनकी बदबू की वजह से इबादत में खलल पड़ता है। बस्ती के 3 सबसे करीबी दोस्त जो अब तक साथ थे, वो भी ये कहकर किनारा किश हो गए कि शायद अय्यूब पर खुदा का कोई गज़ब नाजिल हुआ है, कहीं हम भी इसकी लपेट में ना आ जाएं। आखिरकार बस्ती वालों ने फैसला किया कि उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा बीबी रहमत से फरमाया, ए रहमत, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। बीबी रहमत जिनके पाँव में छाले थे और दिल गम से चूर, उन्होंने बस्ती वालों से मदद मांगी मगर हर तरफ से पत्थर और धमकियां मिले, कोई उन्हें कंधा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार इस अजीम खातून ने अपने नातवा शौहर को फूल की तरह गोद में उठा लिया। वो उन्हें बस्ती से दूर एक ऐसी जगह ले गईं जहां शहर का कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता था। एक नबी अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा अब एक कूड़े के ढेर पर अपनी जिंदगी गुजारने वाला था, जहां धूप, बारिश और मिट्टी उनका मुकद्दर थी। इस मुश्किल वक्त में बीबी रहमत ने वो कुछ देखा जो तारीख की किसी औरत ने नहीं देखा होगा। वो सारा दिन
बस्ती के घरों में मजदूरी करती ताकि अपने बीमार शौहर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। लोग उन्हें ताने देते, धुतकारते, यहाँ तक कि कुत्तों से लड़वाने की धमकी देते। फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे शहर में बीबी रहमत को किसी ने मजदूरी ना दी। शाम ढल रही थी, घर में फाका था और अय्यूब अलैहिस्सलाम कई दिन से भूखे थे। बीबी रहमत के पास बेचने को कुछ न था सिवाय अपने इन सुनहरी बालों के जो उनकी शख्सियत का फख्र थे। फिर वो एक दुकानदार के पास गईं और अपनी जुल्फों की लुटें काट कर एक रोटी के एवज बेच दे। जब वो घर पहुंची और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका सर ढका हुआ देखा तो उनका दिल तड़प उठा। जब हकीकत खिली कि आज रोटी के लिए उनकी शर्कन हयात को अपनी इज्जत बालों का सौदा करना पड़ा तो इस साबिर नबी की आंखों से भी आंसू निकल आए, क्योंकि वो उन्हीं बालों का सहारा लेकर करवट बदला करते थे। बीबी रहमत इसी तरह 7 साल तक अपने शौहर की खिदमत करती रही। इब्लिस ने जब देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम इस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं तो वो पागल हो गया। इसे समझ आ गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को हराने का रास्ता अब सिर्फ बीबी रहमत के जरिए निकल सकता है। वो एक बूढ़े मुसाफिर का रूप धार कर बीबी रहमत के रास्ते में बैठ गया। इसने एक ऐसी पेशकश की जिसने बीबी रहमत के कदम डगमगा दिए और उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की जो बज़ाहिर शिफा थी मगर हकीकत में शिर्क का जहर था। बीबी रहमत जो अपने बाल बेचने के बाद टूट चुकी थीं, रास्ते में निढाल होकर चल रही थी। इसी वक्त इब्लिस एक नूरानी शक्ल वाले हमदर्द बूढ़े मुसाफिर के रूप में उनके सामने आ गया। इसने बड़ी नरमी और हमदर्दी से पूछा, ए नेक खातून, तुम्हारा शौहर जो कभी शहजादा था आज इस हाल में है, क्या इसके खुदा ने इसे भला दिया? रहमत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी तमाम तकलीफें बयान कर दें। इब्लिस ने मौके पाकर अपना जहर अगला। अफसोस, तुम्हारा शौहर इस बर्बादी के बाद भी इसी खुदा का नाम लेता है जिसने इसे कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया। मेरे पास एक इलाज है, ये बिक्री का बच्चा लो, अपने शौहर के पास जाओ और उन्हें कहो कि इसे अल्लाह के बजाय मेरे नाम पर ज़बह कर दें, वो इसी लम्हे तंदुरुस्त हो जाएंगे। बीबी रहमत जो थकावट और भूख से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रही थीं, इस फरेब में आ गईं। उन्होंने इसे एक रहम दिल अजनबी समझकर उसका शुक्रिया अदा किया और वो बिक्री का बच्चा लेकर खुशी खुशी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़। ये सोच कर कि आज उनकी 7 साला जिदोजहद खत्म होने वाली है। जब बीबी रहमत हानपत्ती हुई इस कूड़े के ढेर पर पहुंची जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया और कहा, मेरे प्यारे खावंद, अब बस करें, सब्र की भी हद होती है। इस बूढ़े आदमी का नाम ले कर ये बिक्री का बच्चा ज़बह कर दें ताकि हमें इस जहन्नम से निजात मिल जाए। ये सुनते ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नातुआं जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने तड़प कर फरमाया, ए रहमत, तुझे खुदा के दुश्मन इब्लिस ने बहका दिया है। तूने मेरे सामने शिर्क की तरगीब दी। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो रहती दुनिया तक अक्लमंदों के लिए सबक है। रहमत, ये बताओ, हमने खुशहाली में कितने साल गुजारे? रहमत ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, इसी साल। अपने पूछा, और इस बीमारी को कितने साल हुए? बीबी ने जवाब दिया, सिर्फ 7 साल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर फरमाया, तुमने इंसाफ नहीं किया। हमने इसी साल नेमतें पाईं और अभी आजमाइश के इसी साल पूरे भी नहीं हुए कि तुम डगमगा गईं। अल्लाह की कसम, अगर मुझे शिफा मिली तो मैं इस गुनाह शिर्क की तरगीब के बदले तुम्हें सौ कूड़े मारूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बीबी रहमत, जिनका दिल मलामत से छलनी था, रोती हुई वहां से चली गईं। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले थे, ना माल ना औलाद ना सेहत, और अब वो वाहिद सहारा उनकी बीवी भी चली गई थी। अब मंजर बदल चुका था। कूड़े का वो ढेर, रात का सन्नाटा और एक ऐसा वजूद जिसके जिस्म के कीड़े अब इसे तड़पा रहे थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीमारी से ज्यादा इस बात का डर था कि कहीं इब्लिस उनके ईमान पर आखिरी हमला न कर दे। इसी बेबसी में उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, रब्नु एन्नु में से उन्नी अलजाराव व इनते एरहमा अलरेवामीन, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये अदा इस कदर पसंद आई कि फौरन वही नाजिल हुई। आसमान से निदा आई, अय्यूब, अपना पाँव जमीन पर मारो। जैसे ही उनका पाँव जमीन से टकराया, जमीन के सीने से एक ऐसा चश्मा फूटा जिसने कायनात के तमाम तिब्बी कवानीन को बदल कर रख दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस चश्मे में गुस्ल किया, जैसे जैसे पानी उनके जिस्म पर पड़ता गया, वो जख्म, वो आबले और वो कीड़े ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। उनका गोश्त दोबारा भर गया। उनकी जल्द गुलाब की तरह नर्म और चमकदार हो गई और वो नातुआं जिस्म एक ऐसी जवानी में बदल गया जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। जब उन्होंने ये पानी पिया तो अंदरूनी बीमारियां
भी खत्म हो गई। कूड़े का वो ढेर अब एक तख्त गुलजार बन चुका था। उधर बीबी रहमत, जिनका दिल मलामत से छल्ली था, रोती हुई वापस इस जगह पहुंची। वो परेशान थी कि कहीं उनके बीमार शौहर को कोई दरिंदा ना खा गया हो। जब वो वहां पहुंची तो वहां का नक्शा ही बदला हुआ था। कूड़ा गायब था, वहां आलीशान मकानात और हरियाली थी। उन्होंने वहां एक इंतहाई हुसैन जवान और रोबदार शख्स को चबूतरे पर बैठे देखा। बीबी रहमत की आंखों में आंसू आ गए। वो इस शख्स के पास गईं और बड़ी मासूमियत से पूछा, ए नौजवान, क्या तुमने यहाँ एक बीमार शख्स को देखा है जो यहाँ पड़ा रहता था? खुदा के लिए सच बताना, वो मेरा शौहर था। मुझे डर है कि इसे कुछ हो ना गया हो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम मुस्करा दिए। उनकी आंखों में वही पुरानी शफकत थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम इसे देखकर पहचान लोगी? रहमत ने जवाब दिया, हाँ, वो जवानी में बिल्कुल तुम्हारी तरह दुखता था। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी वफादार बीवी, में ही तेरा अयूब हूं। मेरे रब ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे पहले से भी बेहतर सब कुछ लूटा दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। खुशियां तो लूट आई थीं, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें पहले से दुगना माल और दौलत और औलाद भी अता फरमा दी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इसके बाद तकरीबन 400 साल तक जिंदा रहे। और उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को ज़ाय नहीं करता। आजमाइश जितनी बड़ी हो, सब्र करो, क्योंकि बाद में अल्लाह का इनाम इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। अगर ये वीडियो अब के दिल को छू गई हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।